Good morning, children. Welcome to the new session. Children, you have two books, two English books. One is Wordsworth English Reader and the other is Superb English Grammar. So today we are going to start a new chapter. So take out your Wordsworth English Reader book. Okay? Open page number 1. The Clever Jackal. Before you read, have you ever found yourself in a difficult situation? बेटा, कभी आप किसी सिचुएशन में फंसे हो? कभी भी ऐसा हुआ है कि आप किसी सिचुएशन में, डिफ़िकल्ट सिचुएशन में फंसे हो और आपको समझ नहीं आ रहा कि आप उस सिचुएशन से बाहर कैसे निकलो, उस प्रॉब्लम को सॉल्व कैसे करो? हाउ डिड यू कम आउट ऑफ इट? कैसे आप बाहर आए उस सिचुएशन से? सो रीड द फॉलोइंग स्टोरी टू फाइंड आउट हाउ द क्लेवर जैकल गॉट आउट ऑफ अ डिफ़िकल्ट सिचुएशन. सो बेटा, ये जो स्टोरी है, द स्टोरी इज़ अबाउट अ जैकल who was very clever. वो किसी सिचुएशन में अपनी एक प्रॉब्लम में फंस गया और उस प्रॉब्लम से वो कैसे बाहर आया, ये स्टोरी उसी के लिए है. राइट? सो टुडे वील रीड द चैप्टर. ओके? सो आई एम गोइंग टू रीड इट और आप मेरे पीछे रीड करेंगे. यू विल फॉलो मी. ओके? Once upon a time, there lived a cruel and ferocious lion in a deep forest. Now you people read. He killed and ate any animal that came his way. All the animals of the jungle were afraid of him. One day, all the animals decided to hold a meeting in order to solve this problem. The wise old owl proposed that each day one animal should go to the lion as his meal. This was not the best solution. But since the animals were tired of living in fear all the time, they reluctantly agreed. They all went to the lion and told him about their proposal. The lion agreed. The animals decided among themselves to take turns to go to the lion. The first day, a deer was sent to the lion. His wife, the doe, cried all day. Turn to page 2. The next day, a rabbit was sent. Her little children were very upset and did not eat anything for 3 days. A whole month went by in this way. The animals were sad to see their friends and family members leaving one by one.
but there seemed no solution in sight. One sunny morning, it was the turn of the jackal. His entire family came to say their final goodbyes. Like all the other animals, he also did not want to go to the lion, but he left all his friends and family members half heartedly. As he was walking towards the lion's den, he came up with an idea. He deliberately walked very slowly and reached late. The lion was hungry, and hunger had made him angrier than usual. By the time the jackal arrived, the lion was ready to eat him up at once. The jackal very respectfully apologized for being late and informed him that he had set off with two of his friends as part of the lion's meal. However, on their way, they were attacked by another lion who said that he was the king of their jungle. The other lion had then eaten both his friends. It was with great difficulty that he had managed to escape. Turn to page 3. The lion was furious on hearing this. He ordered the jackal to take him to the place where the other lion was. The jackal took him to a well. The lion saw his reflection in water and thought it was the other lion. He was so angry that without thinking, he pounced at his own reflection and fell into the well. He struggled for some time, but finally drowned. The clever jackal's intelligence had saved all the other animals of the forest. They were very thankful to him and lived in the forest peacefully ever after. A story adapted from the पंचतंत्र. बेटा ये स्टोरी पंचतंत्र से ली गई है, एक पार्ट है उसका. राइट? अबाउट द स्टोरी, द पंचरत्न इज एन age-old Indian collection of animal stories that have been believed to be written by the Sanskrit scholar Vishnu Sharma and which usually contain a moral. The animals in these stories are usually given certain qualities
which help them in different situations. बेटा पंचतंत्र एक इंडियन कलेक्शन है एनिमल स्टोरीज़ का, जो ऐसा माना जाता है कि एक संस्कृत स्कॉलर थे जिन विष्णु शर्मा, उन्होंने लिखी थी। और इन स्टोरीज़ में यूजुअली एक मॉरल होता है, दीज स्टोरीज़ आर मॉरल बेस्ड स्टोरीज़, एंड इसमें कुछ ऐसी क्वालिटीज़ ऐसे दी होती हैं कि कैसे डिफरेंट सिचुएशंस में आप बाहर निकल रहे हैं, हाउ यू कम आउट ऑफ डिफरेंट सिचुएशन। एनिमल्स के थ्रू ये स्टोरीज़ बताई गई हैं, इससे आपको सीखने को मिलता है, राइट। आई विल एक्सप्लेन यू द चैप्टर, देन आई विल आस्क एवरीवन कि इस स्टोरी का क्या मॉरल है। मैं नहीं आपको बताऊंगी बच्चे कि इससे आपको क्या सीख मिल रही है, आपको मुझे बताना है कि आपने इस स्टोरी को, इस चैप्टर को पढ़ने के बाद क्या सीखा, आपको क्या पता चला, राइट। सो चिल्ड्रन, टर्न टू पेज 1. I'll explain you the hard words, the new words. Ferocious. First word is ferocious. What do you mean by ferocious? Ferocious मतलब violent, inhuman, जो इंसान की तरह ना हो, जानवरों की तरह, बहुत ही ज़्यादा वायलेंट, यानी तहस नहस जो कर देते हैं ना, बहुत डरावना। वायलेंट मतलब मार पीट, ये सब। तो फेरोशियस लायन मतलब बहुत सबको खा लेता था, मारता पीट सबको नकोट लेता था, राइट। सो ही वॉज इनह्यूमन। proposed means suggested, so the meaning of proposed is suggested, यानी suggestion दिया। reluctantly, reluctantly means unwillingly, मतलब बिना चाहते हुए, अपना मन नहीं था फिर भी सबने हाँ किया था, reluctantly agree किया था। Children, there are few phrases also. First is came his way. So came his way means to meet someone unexpectedly, कि एक्सपेक्ट नहीं किया आपने और अचानक से कोई आपको मिल गया हो, आपने सोचा नहीं था कि वो मिलेगा और वो आपको अचानक से मिल जाए, तो इसके लिए कौन सा फ्रेज यूज़ होता है? केम हिज वे। नेक्स्ट इज लिविंग इन फियर। लिविंग इन फियर मीन्स टू ऑलवेज थिंक अबाउट अ स्कैरी थिंग और इवेंट, हमेशा कुछ डरावना सोचते रहना, डर से जीना, कि कुछ ऐसा डरावनी चीज़ के बारे में, डरावने इवेंट के बारे में सोचते रहना और आप डरते रहना, दैट इज़ लिविंग इन फियर, डर में जीना, राइट। टर्न टू नेक्स्ट पेज। हाफ हार्टेडली मीन्स अनविलिंगली, आधा अधूरे मन से, ना चाहते हुए। अनविलिंगली मतलब ना चाहते हुए। नेक्स्ट इज डेलिबरेटली। डेलिबरेटली मीन्स नोइंगली। डेलिबरेटली मतलब जानबूझ के, जानते हुए भी ऐसा करना, दैट इज डेलिबरेटली, नोइंगली। यूजुअल। यूजुअल मीन्स नॉर्मल। यूजुअल मतलब जो अक्सर जो होता है, नॉर्मली जो आप करते हो, दैट इज़ यूजुअल। से यूजुअली आई गो टू स्कूल इन टाइम, तो ज़्यादातर मैं स्कूल टाइम से जाती हूँ। यूजुअली मतलब, यूजुअल मीन्स जो नॉर्मली आपका रूटीन है या नॉर्मल जो आप करते हो। नेक्स्ट वर्ड इज अपोलोजाइज्ड। अपोलोजाइज्ड मीन्स सेड सॉरी, आप किसी अपनी गलती मानना इज अपोलोजाइज्ड, राइट। इस पेज पे भी आपके कुछ फ्रेजेस दिए हुए हैं। नंबर 3, नो सोल्यूशन इन साइट व्हेन नो आंसर कैन बी फाउंड। जब आपको दूर दूर तक उसका कोई सोल्यूशन ना मिल रहा हो, जब आंसर ना मिल रहा हो, दैट इज़ नो सोल्यूशन इन साइट। नंबर 4, टू से देयर फाइनल गुड बाय। अपना फाइनल गुड बाय बोलना, दैट्स टू से गुड बाय फॉर द लास्ट टाइम, आखिरी बार, लास्ट टाइम गुड बाय बोलना, यानी मरने से पहले गुड बाय बोलना। या फिर कोई जब किसी और सिटी भी जा रहा होता है, छोड़ के जा रहा होता है कि अब हम दोबारा नहीं मिलेंगे, तो भी फाइनल गुड बाय होता है। बट देन यू डोंट कॉल इट अ फाइनल गुड बाय, बिकॉज आप मिलते हो, आप सिटी छोड़ देते हो, फिर भी आप अपने फ्रेंड से वापस से मिलते हो, कभी हो सकता है 4 years बाद, 5 years बाद, यू स्टे इन टच विद पीपल, राइट। सो टू से देयर फाइनल गुड बाय मतलब लास्ट टाइम गुड बाय बोलना। नंबर 5, हैड सेट ऑफ।
हैड सेट ऑफ मतलब टू बिगिन अ जर्नी, एक जर्नी को शुरू करना, दैट इज़ हैड सेट ऑफ. टर्न टू पेज नंबर 3. फ्यूरियस, फ्यूरियस मीन्स एंग्री, गुस्सा. पाउंस्ड, जम्प्ड. पाउंस्ड मतलब जम्प्ड, अटैक्ड, कूद के अटैक करना, दैट इज़ पाउंसिंग. ये एनिमल्स ही करते हैं यूजुअली. पाउंस्ड दैट इज़ जम्प्ड, अटैक्ड. स्ट्रगल्ड, फॉट, मेड एन एफर्ट, बहुत ज़्यादा लड़ाई करना, आपने बहुत एफर्ट करके किसी चीज़ को पाना, दैट इज़ स्ट्रगल्ड. ड्रोन्ड, डाइड by suffocating in water. Drowned means died by suffocating in water. पानी में अगर कोई डूब जाए तो डूब के मर जाना. तो पानी में जब आप चले गए, आपको स्विमिंग नहीं आती, आप डूब गए या पैर स्लिप हो गया, आप अंदर चले जाओ, कोई भी जो अंदर चला जाए और उसको दम घुटने से जो मर जाते हैं, पानी में जो दम घुटने से जो मरते हैं, उसको बोलते हैं ड्रोन्ड, died by suffocating in water. ओके, सो इसीलिए जब भी स्विमिंग करो बहुत केयरफुली स्विमिंग करनी चाहिए, राइट? डीपर साइड में नहीं जाना चाहिए. ओके, सो चिल्ड्रन, नाउ रीड द चैप्टर अगेन, go through each and every new word, read the chapter carefully. Okay? Thank you, children. That's all for today. Have a nice day.